Good morning students. So today we will discuss about character sketch of उस्ताद अलाउद्दीन खान. तो बेटा इसका करेक्टर स्केच डिस्कस करने से पहले एक इनकी लाइफ पे बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे. किस तरह से इन्होंने म्यूज़िक को सीखा, फिर सरवाइव किया, फिर शोज़ किए और कैसे अपने आप को इसमें सेटल किया और कौन कौन से शिष्य इनके जो है आज बजा रहे हैं. तो आइए पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे, उसके बाद करेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके नोट्स हैं जो आपने नोट कर लेने नोटबुक में. आइए देखते हैं. Maihar, a tiny township of Madhya Pradesh. Here lives Ustad Alauddin Khan, affectionately called Baba by musicians and music lovers. A centenarian, the Ustad has become a legend in his own lifetime. ऐसा फोटो किसी के पास नहीं. आराम कुछ तो पड़ोस है अवसर उनके पास तो हाथ और बसर ये बिटुगन फ्रांस का टाउनशन गंगादेव ये कृष्ण भगवान भगवान महादेव माँ भगवती सब कर रहे हैं. Simple, God-fearing, he respects all religions. His life is a moving saga of adventure. He ran away from home to Calcutta at the age of 8. After spending many anxious days in a temple in Pathuria Ghat, living on one meal a day, he found his guru in the famous Drupadiya, Nilo Gopal. After 7 years, his parents traced him and brought him back to Tripura. They got him married. But on his wedding night, when everyone else was busy with the celebrations, the bridegroom slipped away to seek his first love, music. 10 वर्ष से बदला. In a few years, he made a mark as a musician. The famous actor Girish Ghosh gave him a job as an instrumentalist in Minerva Theatre on a monthly salary of 12 rupees. Alauddin then joined the court of the Raja of Muktagacha in Mymensingh, where he met the Sarod player Ahmad Ali Khan. Alauddin promptly became his pupil. With him he went to Rampur, where he was destined to meet Wazir Khan, the celebrated veena player of the Tansen family. Approaching Wazir Khan was a problem. Once, when the veena player was out on a drive with the Nawab of Rampur, Alauddin lay prostrate before the carriage to attract his attention. Wazir Khan was impressed by the talent and the tenacity of his new pupil and taught him for many years. With the blessings of Wazir Khan, Alauddin later became the court musician of the Raja of Maihar. Since that time, Maihar has been the Ustad's home. It's here the Ustad trained a group of orphans
and organized the Maihar Band. This experiment gave an impetus to all such later efforts in Indian orchestration. In 1936, the Ustad stepped out of India for the first time. He accompanied the famous dancer Uday Shankar on a tour of Europe and was acclaimed by Western audiences. On his return, he stayed with Uday Shankar at Almora, where great gurus of Indian classical dancing were his colleagues. Alauddin, who plays almost all Indian instruments, now established himself as a teacher. This stern disciplinarian molded his children and his pupils into famous musicians. His daughter, Annapurna, his son, Ali Akbar, his son-in-law, Ravi Shankar. His nephew, Bahadur Khan.
Nikhil Banerjee. Sharan Rani. Ashish Khan and many others. These artists today constitute the most lustrous musical family in India, and he still continues to guide fresh talent. The nation acclaimed his genius by awarding him the Padma Bhushan. When the Ustad became a centenarian, it was an occasion of national rejoicing. Despite his fame, Baba is still the simple man that he always has been. Age has not wilted his sensitivity. For this restless genius, there is no halting place. He has still miles to go. Ustad Alauddin Khan, a musician and a sarod expert, was born in 1862 in village Shivpur in the district of Brahmanbadia, Tripura. His father Sabdar Hussain Khan was also a musician. फादर भी आर्टिस्ट थे, तो नेचुरली है कि वो कहीं ना कहीं जो अफेक्ट उसका रहता है. ही टुक हिज फर्स्ट लेसन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर फ़कीर आफ्ताबुद्दीन खान. बड़े भाई से पहला लेसन लिया संगीत का एट द एज ऑफ 10. ठीक है ना. देन बेटा 10 वर्ष की आयु में अलाउद्दीन खान रन अवे फ्रॉम द होम टू ज्वाइन यात्रा पार्टी. घर से चले गए और एक यात्रा पार्टी ज्वाइन की. ही स्टे विद दिस ग्रुप एक्सपोज्ड हिम टू वैरायटी ऑफ फोक जॉनर, जाड़ी साड़ी बौल कीर्तन. ये बेटा जो जॉनर्स हैं ये फोक की विधाएं हैं, जाड़ी साड़ी. ठीक है ना. फोक के कुछ सीखा. उसके बाद सब्सिक्वेंटली ही वेंट टू कोलकाता वेयर ही मेट ए जेनरस फिजिशियन नेम डॉक्टर केदारनाथ हु हेल्प्ड हिम टू बिकम ए डिसाइपल ऑफ गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य, रेपुटेटेड म्यूजिशियन ऑफ कोलकाता. तब उन्होंने जो है कोलकाता में डॉक्टर केदारनाथ ने उनकी हेल्प की और उनको गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य का शिष्य बनाया. देन अलाउद्दीन became his disciple with a commitment to practice सरगम for 12 years. तब उन्होंने उनकी शागिर्दी में जो है 12 साल तक सरगम की प्रैक्टिस की. आफ्टर दैट अलाउद्दीन खान टर्न टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक. तब वो मतलब जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की ओर, जो वाद्य जो संगीत है उसकी ओर
अपना जो है मुड़े, ही लर्न टू प्ले मैनी इंडियन एंड फॉरेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, फ्लूट, पिकोलो, मैंडोलियन। उस इंडियन म्यूज़िक के साथ साथ उन्होंने बेटा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी सीखे। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस टाइम में, जब मतलब जो है अवसर बहुत कम होते थे। और किस्से फ्रॉम अमृत लाल दत्त, ए कजिन ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द स्टार थिएटर। स्वामी विवेकानंद के कजन अमृत लाल दत्त से उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट्स की शिक्षा ली, जो कि स्टार थिएटर के डायरेक्टर भी थे। दस ही बिकेम एन एक्सपर्ट इन मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, तब वो कई वाद्य बजाने में सक्षम हुए। देन ही वैज इन्वेंटेड टू परफॉर्म एट द कोर्ट ऑफ जगत किशोर आचार्य, द जमींदार ऑफ मुक्त गच्छा। देयर अलाउद्दीन खान वाज अट्रैक्टेड टू द सरोद आफ्टर लिसनिंग टू उस्ताद अहमद अली खान। वहाँ पर उन्होंने अहमद अली खान का सरोद वादन सुना, तब वे बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने सीखा नहीं था। देन बेटा उन्होंने क्या किया, फ्रॉम होम ही सब्सिक्वेंटली टुक लेसन्स इन द सरोद फॉर 5 years, 5 साल तक सरोद के लेसन लिए, सरगमों के लेसन। देन अलाउद्दीन खान वेंट टू रामपुर टू टेक फर्दर लेसन फ्रॉम उस्ताद वज़ीर खान। तो वज़ीर खान से और अधिक सीखने के लिए तब वो रामपुर चले गए। रामपुर इज ए बेटा बिग घराना फॉर म्यूजिक, ए फेमस म्यूजिशियन ऑफ तानसेन घराना। वज़ीर खान जो थे तानसेन घराने के प्रमुख जो वादक थे। आफ्टर देन ही बिकेम द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ ब्रिजनाथ द महाराजा ऑफ मैयर स्टेट। आफ्टर देन ही बिकेम द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ ब्रिजनाथ द महाराजा, तब उसके बाद वो जो मेहर स्टेट के दरबारी गायक बने। देन बेटा इतना कुछ सीखने और करने के बाद उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे। अलाउद्दीन खान क्रिएटेड मैनी राग सच एज हेमंत, दुर्गेश्वरी, मेघ बहार, प्रभात कली, हेम बिहाग, मदन मंजरी, खमाज, सरस्वती, धनकोश, राजेश्वरी, दीपिका, भुवनेश्वरी, एट्स। देखिए ये इतने सारे राग उन्होंने सीखे हैं। अपने तो सिलेबस में 4 ही राग है ना, और इन्होंने पता नहीं अनगिनत ऐसे कितने राग हैं जो उन्होंने बनाए, ठीक है ना। इसके अलावा राग भी डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने राग खुद जो है बनाए, खुद कंपोज किए। और उनके अमंग हिज डिसाइपल आर उस्ताद अली अकबर खान, पंडित रविशंकर, उस्ताद मीर केशम खान, रोशन आरा बेगम, अन्नपूर्णा, उस्ताद आशीष खान, उस्ताद ध्यानेश खान, पंडित निखिल बनर्जी, पन्नालाल घोष, शरण रानी, है ना बेटा। ये फेमस नेम है, इसमें से आपने कुछ सुन भी रखे होंगे, जैसे पंडित रविशंकर है, या रोशन आरा बेगम है, या पन्नालाल घोष जो बांसुरी वादक है, शरण रानी है, पंडित निखिल बनर्जी है जो एक बहुत अच्छे सितार वादक हैं। ये सभी इनके शिष्य रहे हैं बेटा। इन्होंने संगीत को सीखा है पंडित उस्ताद अलाउद्दीन खान से। देन बेटा उन्होंने क्या किया, ही फॉर्म्ड एन ऑर्केस्ट्रा ट्रूप विद जो है स्वदेशी इंडिजिनस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नेम्ड इट मेहर स्ट्रिंग्स। तब मेहर स्ट्रिंग्स के नाम से इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा बनाई। देन बेटा लास्ट में ये कुछ करने के बाद ही मैरिड टू मदन मंजरी देवी, ठीक है। ही हैड 1 son and 3 daughters। उस्ताद अलाउद्दीन खान स्टेड एट मेहर फ्रॉम, मेहर घराना है बेटा, ये संगीत का घराना है, ये बार बार नाम आता है मेहर, ठीक है ना। मेहर फ्रॉम 1918 to 1955। अलाउद्दीन वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान साहब बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको खान साहब की उपाधि दी, मतलब उनसे प्रभावित होकर। ही रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1952। ही वॉज डाइड इन 1955। After that, he was honored by Padam Bhushan in 1958 and the Padam Vibhushan in 1971 by the government of India. He was the great artist and god of music. तो बेटा देखिए इतना कुछ करने के बाद, मतलब लाइफ के में इतने साल तो सीखने में लगा दिए, देन अपने स्टूडेंट को सिखाने में लगा दिया, तब कहीं जाकर ये जो उपाधियां हैं पद्म भूषण पद्म विभूषण की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको मरणोपरांत भी उनको दी। और सच ए ही वाज गॉड ऑफ म्यूजिक।
ठीक है ना, जो उन्होंने मेहर स्ट्रिंग्स के नाम से ऑर्केस्ट्रा बनाई। देन ये पंडित रविशंकर जी सीखते हुए सितार उनसे, ये अमजद अली खान साहब सरोद सीखते हुए, सॉरी अहमद अली खान साहब, ठीक है ना। फिर कुछ गवर्नमेंट ने जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब एक जो है डाकघर की टिकट पोस्टल जो ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में जो लगती है, वो उसको श्रद्धांजलि दी। ठीक है बेटा, तो बहुत कुछ किया। देन बेटा ये नोट्स मैं फिर से डाल रहा हूँ, ये पेज वाइज हैं, ठीक है ना। पेज 1 ये इसमें कहाँ जन्म हुआ उनका, कहाँ से उस फर्स्ट लेसन लिया। देन बेटा सेकंड पेज में वो कलकत्ता गए, देन डॉक्टर केदारनाथ ने उनको उनसे मिलवाया। आफ्टर दैट उन्होंने जो है 12 साल तक सरगम की कमिटमेंट की, सीखा। फिर उन्होंने पिकोलो, मैंडोलिन और ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सीखे स्वामी विवेकानंद के रिलेटिव से। देन बेटा एक्सपर्ट इन मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे वादक बन गए। फिर वो किशोराचार्य के पास गए। देन वो उस्ताद अहमद अली खान से उन्होंने सरोद सीखा, वज़ीर खान साहब से सीखा, ठीक है ना। देन बेटा महाराज जो मैहर के महाराज थे उनके दरबारी गायक बने। आफ्टर दैट बेटा ही क्रिएटेड मैनी राग, ये राग उन्होंने खुद कंपोज किए, हेमंत, दुर्गावशरी, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और अच्छे अच्छे शिष्य वो दे गए, अन्नपूर्णा, रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी जी, और मेहर स्ट्रिंग के नाम से उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा बनाई, ठीक है। देन बेटा मदन मंजरी से शादी हुई। देन 1 सन एंड 3 डॉटर्स उनके थे, जिसमें से अन्नपूर्णा देवी जी इनकी डॉटर हैं। फिर उस्ताद अली खान। तो ये सारा स्टोरी है बेटा, ठीक है। थैंक यू।